Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Science of Life with Dr. Muhammad Yousaf. Today we will discuss the regulation of secretion of thyroid hormone, how the hormone is increased or decreased according to the requirement in the body. But before that, an ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. ये सूरह अल नाम की आयत नंबर 151 151 का एक टुकड़ा है कि बेशर्मी की फवाहिश के करीब भी ना जाओ, वला तकरब, उसके करीब भी ना जाओ। करीब जाने का क्या मतलब है कि जहां से कोई इम्कान हो उस इम्कान से भी बचो, जहां पे बेशर्मी की बात हो। मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे वो खुली हुई फवाहिश हो या छुपी हुई फवाहिश वो हो, फवाहिश हो, उनके करीब भी ना जाओ। हमें अल्लाह पाक हमें समझ दे कि इनसे बेहयाई की बातों से, फवाहिश से, बेशर्मी की बातों से हम मुकम्मल इज्तनाब करें, बचें, परहेज करें। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक दे। So we are going to talk about the regulation of secretion of thyroid hormones. It is the very good example of the regulation by the hypothalamo-hypophyseal axis. We took the example of this when we were talking about the general mechanism of regulation of secretion of hormone introductory lectures में. That is regulation by hypothalamo-hypophyseal axis. क्या मतलब? Regulation of T3 T4 is interplay between the activities of hypothalamus and then the adenohypophysis, that is the pituitary, anterior pituitary, and the thyroid gland. इन तीनों लेवल के आपस में एक्टिविटी का इंटरप्ले है. Interplay between these, that is interplay of the hormone from these three levels, that is TRH from the hypothalamus, TSH from the adenohypophysis, and the thyroxines from this. Their interplay regulate these thyroxines. Hypothalamo-hypophyseal axis. This is known as hypothalamo-hypophyseal axis regulation. Now, hypothalamus is the part of the limbic system. It has got many other nervous functions and vegetative functions and endocrine functions, and nervous system temperature regulating mechanism is also in the hypothalamus, and many nutrients detection function is in the hypothalamus. Appetite center is in the hypothalamus. So you must have studied while you were studying the nervous physiology of nervous system. Now the hypothalamus is sensitive to exposure to cold. Temperature regulation is the function of the hypothalamus. Temperature regulating center is in the hypothalamus. When animal or human being is exposed to cold for some time, then there is increased production of the thyrotropin releasing hormone from the hypothalamus through temperature regulating center. The exposure to cold will be detected by the temperature regulating center, and it will send signal to the TRH producing areas in the hypothalamus. Temperature regulating center भी hypothalamus में है, and TRH is also produced by neurons in the hypothalamus. So those neurons will be producing the thyrotropin releasing hormone. जब वो release होगी, that will be absorbed into the blood, that will be brought to the median eminence. पहले वाले lecture आपको याद होगा, the hormone produced in different areas of the thalamus, they are brought to the median eminence where they are released into the blood, and blood carries hypothalamo-hypophyseal portal vessel will carry this to the anterior pituitary, and it will cause the release of respective hormone. Here TRH की respective hormone is TSH. Thyrotropin releasing hormone will cause the release of TSH, and then this TSH will be absorbed in the blood, and it will act on the thyroid follicular cell, and it will cause the production of T3 and T4 thyroxines. This is one. So it is nervous mechanism, neurogenic stimuli which are causing the production of these hormones. You can imagine whenever the person is exposed to cold, exposure to cold,
the person needs more metabolism, more thermogenesis, more production of the hormone. T3T4 is required for the increased temperature in the body. So that mechanism operates through the hypophyseal axis. Excitement or anxiety, that also stimulates the production of this This excitement, anxiety is also the function of hypothalamus. This excitement and anxiety also stimulate this hypothalamus in the form that this excitement, it's, for example, sympathetic nervous system stimulation. This has got the effect opposite to the above one. That is, this excitement, this tension, this causes reduction in the release of the thyrotropin releasing hormone. Then TSH will be reduced and the thyroxine will be reduced. So exposure cold increases TRH, and this sympathetic stimulation or excitement or this anxiety reduce the production of TRH and finally the thyroxines. स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम लीड्स टू, इसका एक और मैकेनिज्म ये भी हो सकता है, इसको देखें ना, इसको अगर सिंपली अगर एंजाइटी टेंशन को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, इट कॉजेज मोर हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी एंड दैट हीट, वो यही काम हो जाएगा. This causes the sympathetic stimulation, this causes heat production, and this increase exposure, decrease heat stimulates it, and increase heat production should inhibit. So increase heat production by the sympathetic nervous system stimulation, it reduces the TRH. ये the nervous mechanism है, neurogenic mechanism है, and through the hypothalamo-hypophyseal axis there will be reduction in the T3 and T4. So that's how regulated. आगे जरा नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं. ये इसको आप नेगेटिव फीडबैक को ध्यान में रखें. Whenever thyroxine is less, this system will be stimulated. TRH less, हमने नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल में बात ये की थी कि डिक्रीज मेटाबॉलिज्म और डिक्रीज T3 T4 स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमिक TRH. इसको हम आगे बात करते हैं. नाउ TSH जब पैदा हो जाए इस वजह से, हाइपोथैलेमिक TRH की वजह से, दिस TSH के फंक्शन हमने लिस्ट किए हैं पिछले लेक्चर में, इफ यू रिमेंबर. फंक्शंस ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स, all the functions of the follicular cell, they are controlled, regulated by the TSH. All the activities of the follicular cells जो हमने लिस्ट किए थे, that is the proteolysis for the release of this thyroglobin, activity of the iodine pump, iodination of the tyrosine, organification जिसको हमने नाम लिया था, and then the secretion of the thyroglobin, size of the follicular cells, and number of the follicular cells. ये वहां पे नाम नहीं डाला था, but whenever TSH is more, the size of the follicular cell also increases. Normal size of the cell is cuboidal cells, but when there is over secretion of thyroxine or TSH, more TSH, or ऐड करने लगा हूं एक बात, TSH like substances, वो आगे हम बात करेंगे. ग्रेव्स डिजीज में TSH की तरह की एक और चीज पैदा होती है, उसका फंक्शन TSH जैसा होता है. सो हाई लेवल ऑफ TSH और TSH लाइक सब्सटेंसेस, उसको हम आगे देखें. थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटीबॉडीज उसको कहते हैं. दे विल कॉज इंक्रीज साइज ऑफ द सेल. साइज जब बढ़ेगा तो क्यूबाइडल होने के बजाय वो कॉलमनर हो जाएंगे. वो सेल क्यूबाइडल होने के बजाय कॉलमनर एपिथेलियम हो जाएगी. सो इंक्रीज साइज ऑफ द फॉलिकुलर सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ द फॉलिकुलर सेल में अकर. सो ऑल दीज फंक्शंस आर द फंक्शन ऑफ TSH. Mechanism of action of TSH. TSH is a polypeptide. पॉलीपेप्टाइड का प्रोटीन, इसका फंक्शन यूजुअली सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म होना चाहिए. नाउ मोस्ट ऑफ द इफेक्ट्स आर थ्रू द सेकंड मैसेंजर मैकेनिज्म, और वो सेकंड मैसेंजर है भी साइक्लिक AMP. Cyclic AMP, that is HR complex, is formed at the basolateral border of the follicular cells. TSH पिट्यूटरी से आ रही है, ये फॉलिकुलर सेल पे काम कर रही है. इसका रिसेप्टर फॉलिकुलर सेल के बेसोलेटरल बॉर्डर पर, बेसल बॉर्डर पर मौजूद है, एंड इट विल कॉज कॉम्बिनेशन ऑफ HR हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विल कॉज द स्टिमुलेशन ऑफ एंजाइम एडिनाइलाइल साइक्लेज. ये हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था. एंड दिस एडिनाइल साइक्लेज विल कॉज द कन्वर्शन ऑफ ATP into cyclic AMP, and this cyclic AMP will cause the
activation of some other enzyme, protein kinase, phosphorylation of other enzymes, resulting into all the activity पिछली slide में जो list करके आए हैं, that secretion, thyroglobulin secretion or iodination or peroxidase formation, etc. ये सारे function, ये phosphorylation of many enzymes and most of the activity of the follicular cell जो हमने list की हैं पिछली slide में, those will be through this cyclic AMP. So this is the mechanism of TSH. TRH रह गई है. TRH is the hormone from the hypothalamus. It is TRH from the hypothalamus secreted by nerve ending in the median eminence. अभी हमने I have just explained it, and it carried by the hypothalamo-hypophyseal portal vessel to the adenohypophysis. और इसका mechanism of action क्या होगा? ये it is also forming HR complex at the cell membrane, thyrotropes. Thyrotropes पे TSH पैदा करनी है ना, पिट्यूटरी के थायरोट्रोप्स वो सेल कहलाते हैं, उसके सेल मेम्ब्रेन पे ये भी पॉलीपेप्टाइड है, ये भी प्रोटीन के साथ मिलेगी और ये भी सेकंड मैसेंजर के जरिए से काम करती है. और दैट सेकंड मैसेंजर इन केस ऑफ दिस टीआरएच इन द पिट्यूटरी सेल्स थायरोट्रोप्स इज फॉस्फोलाइपेज सी. ये सेकंड मैकेनिज्म. वैसे वो साइक्लिक एएमपी है, यहाँ पे फॉस्फोलाइपेज सी. दिस काजेज द एक्टिवेशन ऑफ मे बी सम अदर second messenger mechanism may be activated through, for example, calcium diacyl glycerol. ये भी कभी कभी second messenger के तौर पर काम करता है. And this finally इसका काम क्या है? It will cause the release of TSH from the thyrotropes. तो TSH का function हम बात कर चुके हैं. Now अब इसका interplay हम देखते हैं. What is that? Negative feedback mechanism जो हमने पहले discuss किया हुआ है. That is, whenever thyroxine level is high or the effects are not there, यानी चाहिए ये लेवल का ज्यादा हो या इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, सॉरी इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस, सो देयर विल बी इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, देयर विल बी हीट प्रोडक्शन एंड दैट विल इनहिबिट द हाइपोथैलेमस. अभी हमने स्लाइड में देखा था हीट प्रोडक्शन ड्यू टू सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन causes reduced production of TRH, or absence of heat exposure to cold stimulate TRH. Here थायरक्सिन मौजूद हो, उसका एक्शन हो रहा हो, मेटाबॉलिज्म तेज हो या किसी वजह से भी हीट प्रोडक्शन हो, दैट विल इनहिबिट टीआरएच. टीआरएच कम होगी तो टीएसएच कम होगी, T4 कम होगी, नेगेटिव फीडबैक. इनिशियली हाई लेवल ऑफ थायरक्सिन रिजल्ट्स इनटू सीरीज ऑफ रिएक्शन काजिंग रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ टीएसएच. और इंक्रीज थायरक्सिन जब भी होगी उसका नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इफेक्ट ऑन दी टीएसएच भी है. ये तो टीआरएच की बात की थी. इंक्रीज थायरक्सिन हाइपोथैलेमस को भी इनहिबिट करती है और पिट्यूटरी को भी डायरेक्टली इनहिबिट करती है. इंक्रीज थायरक्सिन इनहिबिट्स द पिट्यूटरी थायरोट्रोप्स एंड देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन. तो दोनों लेवल पर, हाइपोथैलेमिक लेवल पर भी इंक्रीज थायरक्सिन नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन करेगी हाइपोथैलेमिक टीआरएच की, और डायरेक्टली पिट्यूटरी की भी टीएसएच को इनहिबिट करेगी. दोनों मिलकर थायरक्सिन को कम करेंगी. और अपोजिट, इसके एरोज को अपोजिट कर दें, दैट इज डिक्रीज थायरक्सिन, अपोजिट काम हो जाएगा. इट शुड इंक्रीज. ये कैसे इंक्रीज करे? डिक्रीज थायरक्सिन, मेटाबॉलिज्म कम है, हीट प्रोडक्शन भी कम है, तो देयर विल बी मोर टीआरएच प्रोडक्शन. टीआरएच प्रोडक्शन होगी तो टीएसएच विल बी देयर एंड T4 विल बी प्रोड्यूस. और लो लेवल ऑफ थायरक्सिन will negatively stimulate the pituitary. Pituitary को stimulate करेगी, TSH will be produced and thyroxine will be produced. That is the interplay between the hypothalamus, hypophysis and thyroxine level. ये डायग्राम भी हमने देखी थी. That is, thyroxine जब होगी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, this will inhibit मेटाबॉलिज्म. अगर इंक्रीज हो गया, this will inhibit the pituitary, this will inhibit the hypothalamus. और उसका अगर मेटाबॉलिज्म कम है, थायरक्सिन कम है, थायरक्सिन इटसेल्फ इज इनहिबिटरी, एंड अगर ये कम है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, देन देयर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ टीआरएच. एंड जो हमने अभी हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल थायराइड एक्सिस हमने तीनों को देखा, देयर विल बी मोर प्रोडक्शन. तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमने डिस्कस किया हुआ. ये ऑल दी रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन इसी तरह नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से. एक दो बातें अबाउट दिस एंटी थायराइड सब्सटेंसेस. थायराइड सिक्रीशन कम हो सकती है कोई हमारे फूड में या हमारी डाइट में या हमारे किसी ड्रग्स के जरिए से, कोई केमिकल खाने की वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन सप्रेस हो सकती है. इंपॉर्टेंट एंटी थायराइड सब्सटेंसेस उनमें से थायोसाइनेट्स बहुत से कंपाउंड्स हैं.
दे थायोसाइनेट्स, ये ऐसे कंपाउंड हैं, दे कंपीट द इनहिबिशन ऑफ आयोडीन ट्रैपिंग मैकेनिज्म। वो आयोडीन ट्रैप करने वाला निजाम क्या है, वो आयोडीन को ट्रैप, थायोसाइनेट हो तो उसके साथ लग जाता है, ये आयोडीन को छोड़ के उसके साथ लग जाता है। ये थायोसाइनेट मौजूद हो तो इनकी कंपटीशन होती है एट दी आयोडीन पंपिंग मैकेनिज्म पे, तो आयोडीन पंपिंग स्लो हो जाती है थायोसाइनेट की मौजूदगी में, बिकॉज ये compete कर रहा है उसे। so decrease, it will cause the reduced amount of iodides available, and then thyroxine will be reduced. थायरक्सिन जब भी रिड्यूस होगी तो अभी हमने देखा पिछली स्लाइड में, TSH should increase. This is negative feedback effect. TSH should increase and there will be TSH और constant stimulation of TSH है, लेकिन थायरक्सिन पैदा नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? आयोडीन नहीं है, ये थायोसाइनेट की वजह से। उसका रिजल्ट क्या होगा? थायरोग्लोबिन सिक्रीट होगा, सेल साइज बड़ा हो जाएगा, थायरक्सिन नहीं बनेगी, और ग्लैंड देयर विल बी क्या कहते हैं, गाइटर, enlargement of the gland will occur, so there will be goiter. ये मैंने कहा था ना, आपने याद रखना है, कोई कंडीशन जिसमें TSH ज्यादा हो, थायरक्सिन जब भी कम हो, TSH बढ़ेगी, TSH बढ़ेगी तो it will cause goiter, enlargement of the thyroid gland. So, एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ये वेरी कॉमनली एंटी थायराइड ड्रग जो इस्तेमाल की जाती है, बाद जो पेशेंट हमारे हाइपरथायराइड होते हैं उनको हम ये देते हैं, मेथामिजोल या कार्बिमाजोल के नाम से ड्रग्स आती हैं, उनमें ये चीज है प्रोपाइल थायोयूरेसिल है। ये क्या करता है? इनहिबिशन ऑफ दैट ऑक्सीडेशन सिस्टम ऑफ आयोडाइड्स। आयोडाइड्स मस्ट बी ऑक्सीडाइज्ड, उनका ऑक्सीडेशन, वो परऑक्साइड H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड और परऑक्सीडेसेस एंजाइम जो एपिकल बॉर्डर पे मौजूद है उनको इनहिबिट करता है। दिस काजेस दिस प्रोपाइल थायोयूरेसिल, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देता। So inhibition of the peroxidase, no oxidation of iodides will occur, और उसका रिजल्ट ये होगा ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ द थायरोग्लोबिन नहीं होगी, थायरक्सिन का बनना, MIT, DIT एटसेट्रा बनना कम हो जाएगा। So there will be reduced थायरक्सिन, और उसका रिजल्ट गाइटर होगा, क्योंकि थायरक्सिन जब भी कम होगा TSH विल इंक्रीज, TSH इंक्रीज करेगी तो इट विल एक्टिवेट द थायराइड फॉलिकुलर सेल, जो एक्टिवेट कर सकता है, थायरोग्लोबिन सिक्रीशन कर सकता है, सेल का साइज बढ़ा सकता है, फॉलिकुलर ग्रोथ कर सकता है, लेकिन थायरक्सिन नहीं बना सकता। थायरक्सिन तो आयोडीन ऑक्सीडाइज होगी तब नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड विल एनलार्ज with the deficiency of thyroxine, तो गाइटर, हाइपोथायराइड गाइटर है ये। हम इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे हाइपरथायराइड गाइटर, जो ग्रेव डिजीज में गाइटर होता है, वो उसका रीजन कुछ और होती है। ये जो हाइपोथायराइड गाइटर है, ये थायरक्सिन की डेफिशिएंसी की वजह से, TSH के ज्यादा होने की वजह से हुआ है। 20 थायराइड सब्सटेंसेस ये हमने देख लिए इंपॉर्टेंट कौन, थायोसाइनेट्स और प्रोपाइल थायोयूरेसिल। हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स इन द ब्लड, ये देखें कुल अजीब बात याद रखने की है कि अगर आयोडाइड्स ब्लड में ज्यादा हो, ये भी इनहिबिट करते हैं थायराइड को। दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल, हालांकि उसमें आयोडाइन ट्रैपिंग वगैरह निजाम होगा, लेकिन इट हैज बीन सीन हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स inhibits the thyroid follicular cell activity, decreases the thyroglobin secretion, decreases the glandular size and decreases the blood supply। आप देखें कितनी चीजें कम कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स। और ये कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरथायराइड इंडिविजुअल पे, जब ऑपरेशन करना हो ना, ग्लैंड को रिमूव करना हो, तो ये तो बहुत वास्कुलर टिश्यू है। अभी हमने कहा कि 5 टाइम्स उसके वेट से ज्यादा पर मिनट ब्लड सप्लाई है उसकी, तो वेरी वास्कुलर है, तो ब्लीडिंग का बहुत खतरा होता है। और अगर ग्रेव डिजीज या हाइपरथायराइडिज्म हम देखते हैं कि उसमें तो ब्लड सप्लाई और ज्यादा होती है, उसको सप्रेस करना होता है, और थायराइड एक्टिविटी को सप्रेस करके ऑपरेशन करना होता है। थायराइड स्टॉर्म हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसको रोकने के लिए। तो थायराइड स्टॉर्म, वरना ऑपरेशन करने थायराइड स्टॉर्म हो जाता है, उसको सप्रेस करके, उसको नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल करके हम ऑपरेशन करते हैं। तो उसकी थायराइड एक्टिविटी को कम करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, दैट इज हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयोडाइड्स, स्पेशली रेडियो एक्टिव आयोडाइड देने और ज्यादा थायराइड फॉलिकुलर सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। बहरहाल हाई कंसंट्रेशन ऑफ थायराइड रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ थायराइड फॉलिकुलर सेल, इट इज यूज्ड बिफोर द ऑपरेशन ऑन थायराइड ग्लैंड। So that's all about the regulation of secretion। ये मुख्तसर था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला हम हमारा नेक्स्ट ये एबनॉर्मेलिटीज इनको हम डिटेल में देखेंगे, हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स एडीमा,
क्रेटिनिज्म, ये लफ्ज़ आपने सुने होंगे या पढ़े होंगे कहीं। तो वी विल डिस्कस दी हाइपो एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड ग्लैंड, एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड हार्मोन। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी, और प्लीज़ ये शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे पेज को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।